गुड ईवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਈਡੀਅਲ ਤੇ ਨੋਨ ਆਈਡੀਅਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। 100% ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ 3 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ 3 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਇਹਦਾ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ? ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੂਜ਼ ਵੈਲਿਊ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪੋਨ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ, ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੋਟ ਅਪੋਨ ਦੀ ਨੇਚਰ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ। ਸੋਲਿਊਟ ਦੇ ਨੇਚਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਾਊਂਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ, ਸੋਲਿਡ ਹੈ, ਗੈਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਅਮਾਊਂਟ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, 1 ਲੀਟਰ 2 ਲੀਟਰ 3 ਲੀਟਰ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੇਚਰ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨੇਚਰ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੋਲਿਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲਿਕੁਇਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਗੈਸਿਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮੋਸਟਲੀ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੈਲੇਟਿਵ ਲੋਅਰਿੰਗ ਇਨ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਇਨ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, ਥਰਡ ਹੈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇਨ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, ਫੋਰਥ ਹੈ ਓਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ 1 ਬਾਈ 1 ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਰੈਲੇਟਿਵ ਲੋਅਰਿੰਗ ਇਨ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਦੈਟ RLVP ਇਜ਼ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ। ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਇਨ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਸੇਮ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਥੇ TB ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ B ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ F ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੈ। ਓਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਓਸਮੋਸਿਸ, ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ, ਸੈਮੀ ਪਰਮੇਬਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੈਲੇਟਿਵ ਲੋਅਰਿੰਗ ਇਨ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। देखो बेटा, फर्स्ट डेरिवेशन है, पेपर च क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट RLVP इज ए कोलीगेटिव प्रॉपर्टी। इनू असी प्रूव करना। प्रूव किद्दां करांगे? कहंदे सानू पता है अकॉर्डिंग टू दी रोल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू दी रोल्स लॉ की सीगा कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी सबसटेंस इज इक्वल टू दी वेपर प्रेशर ऑफ इट्स प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। हुण मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कढ़ना ना आपां, इत्थे सॉल्वेंट है, फिर की आ जाऊगा P सोल्यूशन डिवाइडेड बाय PA नोड इज इक्वल टू XA। फिर ऑन सबस्ट्रैक्टिंग Y1 ऑन बोथ साइड्स, फिर की होगा 1 माइनस P सोल्यूशन डिवाइडेड बाय PA नोड इज इक्वल टू 1 माइनस XA। सानू पता है XA प्लस XB इक्वल टू 1 के बराबर होंदा है, तो 1 माइनस XA कद इक्वल आ जाऊगा XB दे। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला पिछे आप पढ़ के आए हैं। फिर देखो इत्थे आ जाऊगा PA नोड माइनस P सोल्यूशन डिवाइडेड बाय PA नोड इज इक्वल टू 1 माइनस XA। ये आ गया XB दे इक्वल। इनू आप मान लिया इक्वेशन फस्ट। पेपर दे विच हुंदा की है कि बच्चे सिर्फ इत्थों तक क्वेश्चन करके आ जाते हैं तो समझते कि क्वेश्चन खत्म हो गया। एक गल हमेशा याद रखनी है, चाहे क्वेश्चन 2 मार्क्स का आए, चाहे 3 मार्क्स का आए, चाहे 4 मार्क्स का, ये डेरीवेशन पूरी आप लास्ट तक कंप्लीट करांगे। इत्थों तक सानू सिर्फ ये पता लगा है कि फ्रॉम द इक्वेशन फस्ट या इट इज़ क्लीयर फ्रॉम द इक्वेशन फस्ट कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर या RLVP इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, हैंस इट इज़ ए कोलीगेटिव प्रॉपर्टी। कि नेचर ते डिपेंड करता है, अमाउंट ते डिपेंड करता, नेचर ते डिपेंड नहीं करता, उन्होंने आप कह दें कोलीगेटिव प्रॉपर्टी।
ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, MB ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਆਫ MB। MB मतलब ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ ਜਦੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, WA ਹੁੰਦਾ weight ग्राम ऑफ सोलवेंट, MA की होगा मोलिकुलर मास ऑफ सोलवेंट। ठीक है, इदां ही साडे कोल कहंदे जिहड़ा WB है वो की होगा फिर वेट ग्राम ऑफ सोल्यूट, ते MB की होगा मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, हुण कड्ढना की आपां MB कैलकुलेट करना। MB कैलकुलेट करने वास्ते सानू की पता होना चाहिए, XB दे बारे पता होना चाहिए या फिर NB दे। हुण XB साडे कोल गिवन दिता होया, इस तो बाद ही आपां अगे करांगे डेरिवेशन। देखो उस तो बाद आप MB कैलकुलेट करने वास्ते सानू कहंदे कि XB पता होना चाहिए। XB का इक्वल हुंदा है NB डिवाइडेड बाय NA प्लस NB। आही हुंदा है। NB का मतलब की है, साडे कोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। NB का मतलब की हुंदा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट। एक आधे इक्वल होंदा है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। फिर इत्थों की आ जाऊगा NB की जगह पे WB अपॉन MB आ जाऊगा। हुण आ जिहड़ी आपां इक्वेशन जिहड़ी पिछे सी फस्ट मन्नी सी, इनू आपां मान लैंदे इक्वेशन सैकेंड। फिर put the value of NB in equation second। NB की वैल्यू की होंगी है WB ओवर MB, तो NA की वैल्यू की होगी, ये होगी WA अपॉन MA। बाकी सारा आप उदा ही लिखना है, किसी भी वैल्यू में आप चेंज नहीं करना। फिर देखो आप कितना लिखांगे, XB का इदा ही रहने दिता इज इक्वल टू NB की जगह लिखता WB अपॉन MB। इदा ही NA की वैल्यू निकल जूगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट का इक्वल हो जाऊगा, क्योंकि ये सोलवेंट प्लस सोल्यूट है, या तो इन्हू सोल्यूशन कहांगे या सोलवेंट प्लस सोल्यूट। तो जिथे A है उत्थे BB लगा दा, A जिथे B है उत्थे AA लगा देवांगे। फिर देखो WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB। इत्थे तक वैल्यू आ गई साडी। उस तो बाद आपां की करना है, कढ़ना असीं की इहदे विच आपां MB की कैलकुलेशन करते पे। इस तो बाद देखो कहंदे कि एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, इनफाइनाइट डिल्यूशन आपां की कीता, एक पर्टिकुलर पोजीशन ते आके इहदे विच इनफाइनाइट डिल्यूशन कर दित्ते। सानू पता ही नहीं आपां इहदे विच कितना पानी ऐड कर दिता, उहनूं आपां कहता इनफाइनाइट डिल्यूशन। एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ते की हुंदा है, आ जिहड़ी नीचे वाली वैल्यू है WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ जाती है WA अपॉन MA दे। एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ते जाके आपां की करते हैं, जिहड़ी WA MA है या WB MB है, ये कादे इक्वल आ जाती है साडे कोल WA अपॉन MA दे। फिर इस वैल्यू नूं आपां की कीता, इनू आपां मान लिया इक्वेशन थर्ड। इस वैल्यू नूं आपां पुट कर देना थर्ड दे विच।
put this value in equation थर्ड इक्वेशन च पुट करांगे तो फिर देखो कि होगा एक्स बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। हुण इत्थे देखो साडे कोल कि डिवीजन च है, आ वाली चीज़ उपर चल जूगी, एम बी नीचे आ जाऊगा तो मल्टीप्लीकेशन हो जाऊगा। एक्स बी इज इक्वल टू की बनूगा फिर डब्ल्यू बी इंटू एम ए डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए इंटू एम बी। इन्नी वैल्यू आ गई। उस तो बाद की किया, इनू आपां मान लिया इक्वेशन फोर्थ, इत्थों तक आ गया। हुण एम बी कैलकुलेट करना असी, एम बी लै जाएंगे एक्स बी की जगह तो एक्स बी लै जाएंगे एम बी की जगह पर। बट एक्स बी की वैल्यू भी तो सानू पता है, पिछे असी पढ़ के आए हैं कि जिहड़ी एक्स बी की वैल्यू है कादे इक्वल हुंदी है। पहला वो वाली वैल्यू पुट करांगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट देखो सारे अपनी कॉपी से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट की है, फर्स्ट इक्वेशन की सी साडी कि पी ए नोड माइनस पी सोल्यूशन डिवाइडेड बाय पी ए नोड इज इक्वल टू एक्स बी के बराबर से। ये सी साडी इक्वेशन फर्स्ट। हुण आपां की करना है, आ जिहड़ी फर्स्ट इक्वेशन है इनू पुट कर देना ये एक्स बी की जगह पर। फिर देखो साडे कोल की आऊगा पी ए नोड माइनस पी सोल्यूशन डिवाइडेड बाय पी ए नोड इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए इंटू एम बी। एम बी कैलकुलेट करना, एम बी आप लै गए इधर। आ जी सारी होल वैल्यू सी आ वाली, ये सारी एम बी की जगह चले जानी है। डब्ल्यू बी इंटू एम ए डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए पी ए नोड माइनस पी सोल्यूशन डिवाइडेड बाय पी ए नोड। आ गई साडी कैलकुलेशन का दी एम बी दी। हैंस प्रूव्ड। ए डेरिवेशन है कादी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रैशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इनू डेरिवेशन नू देख लेना, एक दो बारी लिख के प्रैक्टिस करके देखांगे आपां तो सानू बड़ी ईजीली आ जाएगी। ओके थैंक यू। नैक्सट आपां फिर करांगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिगेशन इन बॉलिंग पॉइंट।